Hello friends, this is Anchal and I welcome you all on Adda247 with the topic that is rearrangement of sentences. So as you all know, rearrangement of sentences is also known as parajumbles, right? So what do we mean by this when I say parajumbles or rearrangement of sentences? You're given with a certain set of sentences, that means 5 to 6 sentences are given. 5 से 6 sentences आपके लिए गिवन रहेंगे और इन्हीं sentences को jumbled form में दिया रहेगा. This will be given in jumbled form and you have to rearrange all the 5 sentences, all the 6 sentences that you have, right? तो अब यहाँ पर जब आप 5 से 6 sentences को rearrange कर रहे हैं, what happens with this is, क्या होगा इसके साथ? देखो, आपके पास दो चीज़ें हैं. The methods that you going to use can be of two types. The first will be your elimination method, as I told you, right? And the second will be your what? Will be your logical pair method. Now, try and understand certain things about it. आप कुछ चीज़ें इसके बारे में समझने की कोशिश करिएगा. Elimination method says what? Elimination method क्या कहता है? If you have certain sentences, तो आप first sentence को identify करो. First sentence कैसा लगेगा? Then you identify the central part. How will we have that? And then you identify the last part. How will we identify the last part, right? So this is what you have in elimination method. Next says logical, same. If you have noun, place it with pronoun. If you have subject, place it with the introduction. If you have a statement, place it with the example, correct? Statement, place it with the example. So these are certain logical pairs that you have to form while solving any kind of questions. Now, certain times we have to follow both in one question. कभी हमें क्या होता है, पहले तो एलिमिनेशन मेथड में कहते हैं पहला पार्ट कैसे ढूंढना है, सेंट्रल पार्ट कैसे ढूंढना है, लास्ट पार्ट कैसे ढूंढना है. लॉजिकल पेयर में नाउन प्रोनाउन को एक साथ लगा दो, सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन को एक साथ लगा दो और स्टेटमेंट और एग्जाम्पल को एक साथ लगा दो. अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें आपको दोनों को ही यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना होता है. तो दीज आर सर्टेन थिंग्स जो आपको अपने दिमाग में रखना है while solving any kind of question that is given to you related to parajumbles or rearrangement of sentences. So take the one thing into consideration. एक चीज़ ध्यान में रखना कि जितनी ज़्यादा अपनी रीडिंग एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग स्किल इंप्रूव करोगे उतने ज़्यादा रीअरेंजमेंट सॉल्व करना आपके लिए ईजी हो जाएगा. सो बेसिकली यू हैव टू फोकस ऑन एडिटोरियल सेक्शन. द लेफ्ट पार्ट ऑफ द एडिटोरियल सेक्शन दैट इज द आर्टिकल वेयर you have 2 articles given. Divide each article into 4 to 5 parts and then try making a summary out of it of 1 line or 2 line. एक और 2 line की उसकी summary बनाइए. As you make the summary, what happens is you are able to retain whatever you've read earlier and whatever you read at the end. तो आप retain कर पा रहे हो and with that you are able to understand and you are able to develop the skill that you have certain structures, the sentences which is not given in general sentences. जो generally sentences में नहीं दिए रहते हैं, generally text में नहीं given रहते हैं. तो ऐसे स्ट्रक्चर्स भी आप क्या करोगे, लर्न करने लग जाओगे जब आप एडिटोरियल सेक्शन लर्न करोगे. तो नाउ वेरेवर यू हैव वन वोकैबुलरी, दैट वोकैबुलरी कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट टर्म्स व्हेन यू गो टू न्यूज़पेपर, राइट? तो न्यूज़पेपर में आप अलग अलग तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं. तो इससे आपका वोकैबुलरी स्किल भी डेवलप हो जाएगा. दैट मीन्स यू आर एक्चुअली डेवलपिंग 3 थिंग्स एट द सेम टाइम एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट or reading comprehension or fill in the blanks. All of this will be very easy for you if you develop 3 things in you. That's reading skill, understanding ability and vocabulary. ठीक है? तो इसको excel करने के लिए भी वो चीज़ चाहिए and editorial section will help you like hell. किसी भी मतलब बहुत अच्छी तरीके से अगर हम बोलते हैं कि हेल्प करेगा तो आपको एडिटोरियल सेक्शन हेल्प कर सकता है. ठीक है, तो अब हम चलते हैं. तो हमने बोला है ये इसकी इन डिटेल वीडियोस दी गई हैं एलिमिनेशन मेथड और लॉजिकल मेथड की कि आपको कैसे बनाना है. इन डिटेल मेथड उसका ऑलरेडी गिवन है. तो दिस इज व्हाट यू हैव टू फॉलो. नाउ लेट्स बिगिन विद दिस. अब हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन ऑन स्क्रीन एंड वील आइडेंटिफाई वेदर वी हैव व्हाट एज आवर फर्स्ट सेंटेंस, व्हाट एज आवर सेंट्रल पार्ट एंड व्हाट एज आवर लास्ट पार्ट. चलिए देखते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन. हियर इट इज. देखो इसमें स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं और मिक्सचर है दोनों का. गवर्नमेंट से रिलेटेड भी है, दैट मीन्स इकोनॉमी से रिलेटेड भी है एंड वी हैव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टोरी एज वेल. तो देखो यहाँ पर क्या है. सबसे पहला स्टेटमेंट, Once I visited a friend in Delhi. When the morning papers came, he would take the puzzle page and start attacking the Sudoku with whatever pen or pencil at hand. But his attitude conveying a victor's contempt at the loser program that had set the puzzle. Within minutes, he would be done. The extra diabolical puzzle killed in an ugly splatter of pen marks, scratching out and overwriting, with a sniff only Bengali men of a certain age can produce. He would drop the page and march to the bathroom. While drinking tea,
talking on the phone, playing with his cat, screaming at some guy 3 floors below for parking too near his car. Okay, so this is what he is talking about his friend. तो ये अपने दोस्त के बारे में पूरी बात कर रहा है. But the sentence that introduces the subject or the sentence that introduces the author, जो sentence author को introduce कर रहा है, बाकी सारे में तो दोस्त की बात दी गई है, B, C, D, E सब में दोस्त की बात दी गई है, लेकिन only one sentence is there that starts with the introduction of the author, right? ऑथर के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है ऑप्शन नंबर 1 एंड इंट्रोडक्शन विल बी योर फर्स्ट सेंटेंस. सो इट स्टार्ट्स विद वंस आई विजिटेड अ फ्रेंड इन दिल्ली. एक बार मैं अपनी दिल्ली में एक दोस्त से मिलने गया. When the morning papers came, जैसे ही मॉर्निंग मतलब सुबह का अखबार आया, he would take the puzzle page and start attacking the sudoku with whichever pen or pencil at hand. वो जैसे ही पेपर आता है, सुडोकू वाला पेज, पजल वाला पेज खोलकर सुडोकू को अटैक कर देता है और जो भी पेन या पेंसिल उसके हाथ में होता है, he starts solving it, right? तो यहाँ पर इसके फ्रेंड का इंट्रोडक्शन भी हो गया. नाउ कमिंग फॉरवर्ड, जैसे ही वो क्या करता है, सुडोकू को अटैक करता है, तो अटैक किया पेपर पे, उसके साथ क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर ई भी कर रहा है. दैट मीन्स वाइल ड्रिंकिंग टी मतलब चाय पीते पीते, टॉकिंग ऑन द फोन मतलब फ़ोन पे बात करते करते, प्लेइंग विद कैट के साथ खेलते खेलते, स्ट्रीमिंग एट सम गाय 3 फ्लोर्स बिलो और फॉर पार्किंग टू नियर हिज कार. और 3 फ्लोर नीचे जो आदमी है वो उसकी गाड़ी के पास अगर बहुत ज़्यादा पास अगर कोई इंसान गाड़ी पार्क कर देता है तो उसके ऊपर भी चिल्लाते. तो ही इज़ डूइंग ऑल ऑफ दिस, पेपर को मतलब सुडोकू सॉल्व कर रहा है और अलॉन्ग विद दैट ही इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? उसके साथ साथ ये सब काम भी कर रहा है. देन विदिन मिनट्स ही वुड बी डन. और कह रहे हैं इसके साथ कुछ ही समय में, मतलब इन सारे काम को करने के साथ साथ कुछ ही मिनट्स में वो खत्म कर देता है उस पजल को, राइट? फिर कह रहे द एक्स्ट्रा डायबॉलिकल पजल किल्ड इन एन अगली स्प्लैटर ऑफ पेन. अच्छा, अगर कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, थोड़ी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग पजल आ जाती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि पजल नहीं सॉल्व होगी, पजल सॉल्व होगी. इन एन अगली स्प्लैटर मतलब बहुत ज़्यादा घुचुर पुचुर कर दिया होगा, उसमें पेन मार्क से स्क्रैच कर दिया होगा, ओवर राइट कर दिया होगा. मतलब कोई पजल सॉल्व कर रहा है, उसको पहले लगा ए लगेगा, नहीं ए नहीं होगा, उसको स्क्रैच करके फिर बी, ए लिखा नहीं ये बी होगा, अब बी को हटा के नहीं ये सी होगा, नहीं डी होगा. तो दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय स्क्रैचिंग और ओवर राइटिंग. ये सब उसने किया स्प्लैटर ऑफ पेन से, ठीक है? फिर उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, आफ्टर दैट with a sniff only Bengali men of a certain age can produce, he would drop the page and march to the bathroom. ठीक है, जैसे ही उसने वो पजल ख़त्म कर लिया बाय स्क्रैचिंग एंड डूइंग ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ओवर राइटिंग, स्क्रैचिंग, सब चीज़ करने के बाद जैसे ही ये पजल एंड होता है ना, तो उसके बाद क्या करेगा वो, ड्रॉप द पेज मतलब वो पेज को छोड़ता है. पेज की बात हो रही है. आफ्टर सॉल्विंग ही ड्रॉप्स द पेज और तुरंत बाथरूम के अंदर चला जाता है. एंड देन हिज एटीट्यूड कन्वेइंग अ विक्टर्स कंटेम्प्ट एट द लूजर प्रोग्राम दैट हैड सेट द बजल. और फिर उसका एटीट्यूड ऐसा हो जाता है कि विक्टर्स कंटेम्प्ट मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें लोग हार नहीं सकते थे, मतलब वो हार जाते लेकिन वो जीत गया, ऐसा उसका एटीट्यूड हो जाता है जो कि उसने पजल सेट कर लिया है, राइट? तो यहाँ पर बी वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, राइट? सो द करेक्ट सीक्वेंस इज ए, ई, सी, डी एंड बी. करेक्ट. चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. लेट्स हैव रिव्यू ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए ये तो स्टोरी बेस्ड था, ये आपको पता चल गया. दिस कैन कम इन क्लर्क प्री. ठीक है, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका ये क्लर्क प्री के एग्जाम में आ सकता है. ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है. विद इक्वल अटेंशन बेस्टोड अपॉन एवरी स्यूट द अल्पना एक्वायर्ड अ क्योरिस्क्योर ऑफ शज्जा वर्जा संचरार्स दैट बैलेंस्ड आउट द राइवी फ्रेजेस एट द सत्र सताई. ठीक है, सताई. फिर कह रहे बैंकिंग ऑन अ रिच टिम्बर वार्म्ड बाय डेप्थ एंड एनहांस्ड बाय एन एफर्टलेस ट्रैवर्स अक्रॉस ऑक्टेव्स. It was a well-rounded essay, yet one that left you with the feeling that the artist was capable of more. Vocalist R. Ashwath Narayana embarked on the Thodi Alpana at his concert in Chennai. That was a judicious blend of Vilamba and Madhyama Kala Prayogas buttressed by sturdy PDs. ठीक है, voice stood the artist in good stead and evens in tone evident in 3 styles. देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसी तरह के
कला की, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द आर्ट, राइट. किसी चीज़ के एक कॉन्सर्ट पे एक आर्ट हुआ, आर्ट को हम कंबाइन करने की बात करें, राइट. बट यहाँ पर सेंटेंस की बिगिनिंग किससे हो रही है? विथ इक्वल अटेंशन बेस्टोड अपॉन, विथ इक्वल अटेंशन, दैट मीन्स यू आर गिविंग इक्वल अटेंशन टू समबडी. अगर हम इक्वल की बात करें तो इक्वल तो किसी से होगा ना, दैट मीन्स यू हैव टू मेंशन बिफोर समथिंग. इसके पहले आपको कुछ लगाने की जरूरत है, तभी तो आप इक्वल डिफाइन कर सकते हो, ऑब्वियसली, राइट. बी में देखो क्या दिया हुआ है, सो ऑब्वियसली ए नहीं पहला होगा. बी कह रहा है बैंकिंग ऑन अ रिच टिम्बर वार्म्ड बाय डेप्थ एंड एनहांस्ड बाय एन एफर्टलेस ट्रैवर्स अक्रॉस ऑक्टेव्स. ये हो सकता है, कह रहे हैं बैंकिंग ऑन अ रिच टिम्बर वार्म्ड बाय डेप्थ, मतलब रिच टिम्बर के साइड में जहाँ जो डेप्थ से वार्म किया गया है, एंड एनहांस मतलब डेप्थ उसमें बहुत ज़्यादा है, एनहांस बाय एन एफर्टलेस ट्रैवर्स अक्रॉस ऑक्टेव, ऑक्टेव्स के अक्रॉस एफर्टलेस ट्रैवर्स लगाया गया है, उसके बारे में बात हो रही है. तो दिस इज एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस विच कैन फॉर्म, ऑब्वियसली विच कैन फॉर्म आवर फर्स्ट सेंटेंस, बट देन वी हैव टू लुक फॉरवर्ड टू द अदर सेंटेंसेस एज वेल, राइट. सो सी सेज व्हाट? C says, it was a well-rounded essay, yet one that left you with the feeling that the artist was capable of more. Now see, we are talking about well-rounded essay. We are talking about an essay. हम essay की बात कर रहे हैं. So you must have written some essay before that, right? आपको उससे पहले कुछ essay लिखना पड़ेगा. So we have not written any essay till now. So obviously C cannot be the first sentence. Now as you can see, this sentence is a concluding sentence. It says it was a well-rounded essay. That means you have already mentioned about the essay. You've already understood that it was a well-rounded essay. So obviously this contains a concluding part. So maybe option number C can be your last part, right? Maybe it can be your last part. So obviously it's not the first one. Then referring to the D part, it says vocalist R. Ashwath Narayana embarked on Todi Alpana at his concert in Chennai and was a judicious blend of Vilamba and Madhyama Kala Prayogas buttressed by sturdy pities. Now we are talking about what? We are talking about a concert in Chennai, and Ashwath Narayana, R. Ashwath Narayana, he was a vocalist, and he was doing what? He embarked on Todi Alpana, right? So he did something on Todi Alpana, and what was he doing? That was a judicious blend of Vilamba. And now see, there was a judicious blend of Vilamba. That means there were two colors. वहाँ पर दो आर्ट की बात हो रही है, दो कला की बात हो रही है, विलंबा और मध्यमा की. तो इन दोनों का जुडिशियस ब्लेंड की बात करी गई है. दे परफॉर्म्ड एट दैट कॉन्सर्ट, और उस कॉन्सर्ट में कुछ इस तरह से बात हुई, ठीक है. देन so obviously we are referring to somebody who has performed. We are referring to the kala, but this is not giving the इंट्रोडक्टरी सेंटेंस. ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं दे रहा है. फिर ई में क्या दिया हुआ है? वॉइस टू द आर्टिस्ट. आर्टिस्ट की वॉइस की बात करें तो आर्टिस्ट अभी मेंशन किया तो गया नहीं है, तो हाउ कैन यू रेफर टू द वॉइस ऑफ दैट आर्टिस्ट? यू कैन नॉट, राइट. सो ऑप्शन नंबर ई भी पहला नहीं हो सकता. नाउ यू लेफ्ट विद ओनली बी एज योर फर्स्ट सेंटेंस. बी ही हम पहला सेंटेंस लगा सकते हैं जो कि आपके सेंटेंस को इंट्रोड्यूस कर रहा है, विच इंट्रोड्यूसेस द सेंटेंस. जो इंट्रोड्यूस कर रहा है बैंकिंग ऑन रिच टिम्बर वार्म्ड बाय डेप्थ एंड एनहांस्ड बाय एन एफर्टलेस ट्रैवर्स अक्रॉस ऑक्टेव्स, ठीक है. उसके बाद लगेगा क्या? अब बताओ कि क्या हुआ वहां पर. वंस यू आर टॉकिंग अबाउट द इंडिपेंडेंट सेंटेंस, अब आप कॉन्सर्ट के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं. दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर डी. आप बता सकते हो वोकलिस्ट आर अश्वथ नारायण embarked on Todi Alpana at his concert in Chennai that was a judicious blend of Vilamba and Madhyama Kala Prayogas buttressed by sturdy pities. Got it? The next sentence would be why stood. Now obviously we are referring to the artist here, right? हमने आर्टिस्ट का नाम तो यहाँ पर लिख दिया. We have written the name of the artist over here. But then what happened with the artist? That is given in option number E, which says what? What happened to the eyes? What happened to the voice? Voice stood the artist in good stead and enhanced in tone evident in three styles. तो यहाँ पर बात हो रही है voice की, and this voice is obviously related to the artist that is given in option number D. ये जो voice related है वो artist से related है जो option number D में हमने mention किया है. Moving further, आफ्टर दैट आप बता सकते हो उसी इक्वल अटेंशन के साथ व्हाट हैपेंड विद इक्वल अटेंशन बेस्टेड अपॉन एवरी स्यूट द अल्पना एक्वायर्ड अ क्यारोस्क्योर ऑफ सजदा वर्जा संचार्यास दैट बैलेंस्ड आउट द रावल फ्रेजेस एट द तारा स्थाई. ठीक है, 3 स्टाइज की बात हुई थी, तारा स्थाई पे ये बात हो गई. ठीक है, तो 3 स्टाइज आपने पहले मेंशन कर दिया इन ऑप्शन नंबर ई, और उसके बाद आपने तारा स्थाई मतलब एक स्थाई की बात करी, दैट इज ऑप्शन नंबर जो जिसमें लिखा हुआ ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, and the last sentence obviously would be your
लास्ट सेंटेंस जो हम कह रहे हैं ये वेल राउंडेड एसे था, राइट? सो ऑप्शन नंबर सी इज योर लास्ट स्टेटमेंट. इट वाज अ वेल राउंडेड एसे, yet one that left you with the feeling that the artist was capable of more. So you have what? B, D, E, A, C as your correct sequence for this question. ठीक है गाइज, आई होप आप एक काम तो कर ही रहे हैं ना. दैट मीन्स आप हर क्वेश्चन को पॉज करके यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड देन यू आर डूइंग व्हाट, देन यू आर रेफरिंग टू द सोल्यूशन, राइट? चलो, एनीवे लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है, पहले दो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए. अब देखो नेक्स्ट आया है क्या. Dear warnings about Mr. Yamin's emergency in the past month have led to the Maldives cancelling its participation in the Indian Navy's Milan exercise. Even in Bangladesh, with Bangladesh Home Minister Adda247 Khan describing the remarks as untrue, unfounded and not helpful. The Indian Army Chief General Bipin Rawat's tough talking last week about immigration has drawn air there. The required changes in the government's treatment of the opposition and New Delhi's dash Mr. Modi's decision to abruptly cancel his visit to Mail in 2015 did not yield what? Now, see, we are talking about what? We are talking about something. The first thing, dear warnings, cannot be the first time. With Bangladesh Home Minister, cannot be the first sentence. Why? If you are talking about warnings, right? If you're talking about warnings, this cannot be the first sentence. ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता. वार्निंग किसको दे रहे हो, किस चीज़ के लिए दे रहे हो, नहीं पता ना. तो कहीं पर ये सेंटेंस होगा, उसी से तो रिलेट कर पाओगे, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू डू दैट. देन ऑप्शन नंबर बी स्टार्ट होता है किससे? With Bangladesh Home Minister Adda247 Khan describing the remarks as untrue. This couldn't be the first sentence. Why? बांग्लादेश का होम मिनिस्टर Adda247 Khan ने क्या किया, डिस्क्राइब करते हैं वो रिमार्क्स को अनट्रू, उन रिमार्क्स को वो अनट्रू बता रहे हैं. सो वी हैव नॉट मेंशन एनी रिमार्क्स टिल नाउ, राइट? हम कोई रिमार्क्स को अभी तक तो बता नहीं पाए हैं, तो रिमार्क्स को आप अनट्रू कैसे कहोगे? फिर उसके बाद सी आता है. सी वाले स्टेटमेंट में देखो क्या लिखा हुआ है. द इंडियन आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत टफ टॉकिंग लास्ट वीक अबाउट माइग्रेशन हैज ड्रॉन एयर देयर. कह रहे हैं कि अब इंडियन आर्मी चीफ जो जनरल बिपिन के रावत के जो टफ टॉकिंग थी, दैट मीन्स ही मस्ट हैव यूज्ड सम सर्टेन वर्ड्स जो बहुत स्ट्रिक्टली उन्होंने कहे हो लास्ट वीक इमिग्रेशन से रिलेटेड. वो भी सेंटेंस अब जो कहा है, जो भी कहा गया है, वो कब कहा गया होगा? व्हेन यू हैव मेंशन्ड समथिंग, तभी तो कुछ कहा होगा ना. ये रिस्पॉन्स की बात है एंड रिस्पॉन्स कैन ओनली कम व्हेन यू हैव सेड समथिंग, तभी तो रिस्पॉन्स आएगा. इट कैन नॉट बी दैट. डी कह रहा है द रिक्वायर्ड चेंजेस इन द गवर्नमेंट्स ट्रीटमेंट ऑफ द ऑपोजिशन एंड न्यू दिल्लीज. कह रहे हैं रिक्वायर्ड चेंज जो होंगे या होना चाह रहे हैं गवर्नमेंट ट्रीटमेंट में ऑपोजिशन की तरफ एंड न्यू दिल्लीज व्हाट. अपॉस्ट्रोफी एस लगा तो इसके बाद नाउन आना चाहिए, ठीक है. फिर कह रहे हैं मिस्टर मोदीज डिसीजन टू अब्रप्टली कैंसिल हिज विजिट टू मेल इंटरव्यू डिड नॉट यील्ड. अब यहाँ पर एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस आ रहा है भाई कि मिस्टर मोदी का जो डिसीजन था, क्या अब्रप्टली मतलब अचानक से उन्होंने कैंसिल कर दिया मेल पे जो उनकी विजिट थी 2015 में. डिड नॉट यील्ड व्हाट, ठीक है, उन्होंने क्या नहीं किया, या फिर डिड नॉट यील्ड व्हाट, उनका क्या प्रोड्यूस नहीं हुआ. सो ऑब्वियसली ई विल बी योर स्टार्टिंग स्टेटमेंट. ई आपका स्टार्टिंग सेंटेंस होने वाला है दैट इज इंट्रोड्यूसिंग व्हाट ही एक्चुअली डिड. ठीक है, उन्होंने किया क्या और उसकी वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए, राइट. सो मिस्टर मोदी ही डिड समथिंग, उन्होंने क्या किया, अब्रप्टली मतलब बिना बताए बिना कुछ करे अचानक से मीटिंग को कैंसिल कर दिया, विजिट को कैंसिल कर दिया. एंड देन आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, उसके बाद क्या होता चला गया, ये देखो ऑप्शन नंबर डी. Did not yield the required changes in the government's treatment of the opposition. Did not yield what? अगर प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, अगर यील्ड की बात कर रहे हैं, तो यील्ड क्या, यील्ड एक वर्ब है तो उसके आगे क्या, एक नाउन लगना चाहिए. सो दैट नाउन इज गिवन इन ऑप्शन नंबर डी. उसने यील्ड नहीं किया, क्या, रिक्वायर्ड चेंजेस, मतलब जो चेंजेस जिस वजह से उन्होंने किया था, जिस वजह से उन्होंने अपनी विजिट कैंसिल करी थी, वो चेंजेस नहीं आए जो उन्होंने सोचे थे, जो चीज़ें उन्होंने कही थी. द रिक्वायर्ड चेंज इन द गवर्नमेंट ट्रीटमेंट ऑफ द ऑपोजिशन एंड न्यू दिल्ली इज व्हाट, न्यू दिल्ली इज विद तो लगेगा नहीं, न्यू दिल्ली इज द इंडियन आर्मी चीफ नहीं लग सकता, न्यू दिल्ली इज डियर वार्निंग्स ऑफ कोर्स. अब बी और सी में से कुछ भी प्लेस नहीं हो सकता क्योंकि अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, क्योंकि डी के लास्ट में अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है. दैट मीन्स यू हैव टू मेंशन अ नाउन आफ्टर इट, उसके बाद आपको नाउन लगाना है. तो न्यू दिल्ली इंडियन आर्मी चीफ थोड़ी होगा, न्यू दिल्ली का इंडियन आर्मी चीफ नहीं हो सकता. इंडिया का न्यू दिल्ली आर्मी चीफ हो सकता है, लेकिन न्यू दिल्ली का इंडियन आर्मी चीफ नहीं हो सकता, ऑब्वियसली बिकॉज दैट्स अ स्मॉल प्लेस, राइट. इंडिया से छोटी जगह है न्यू दिल्ली, तो आप अपॉस्ट्रोफी उसके साथ नहीं लगा सकते. यू लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर
A, that says, dear warnings about Mr. Yameen's emergency in the past month have led to the Maldives cancelling its participation in the Indian Navy's Milan exercise. Even in Bangladesh, the Indian Army Chief या with Bangladesh Home Minister, क्या होगा बताओ? अब ऑब्वियस ही बात हो गई, इसके बाद क्या होगा? Even in Bangladesh with Bangladesh Home Minister तो होगा नहीं. Even in Bangladesh हुआ क्या? इसके बावजूद, इसके अलावा बांग्लादेश में भी कुछ हुआ क्या? The Indian Army Chief General Bipin Rawat's tough talking last week about immigration has done here there with Bangladesh Home Minister Adda247 Khan describing the remarks as untrue, unfounded and not helpful. So correct sequence आपका क्या हो गया? EDACB is the correct sequence of this sentence. आप आसानी से इसको relate कर सकते हैं. Apostrophe S को एक noun से relate करना है. Then ending the sentence with even in Bangladesh. तो बांग्लादेश में बांग्लादेश होम मिनिस्टर थोड़ी, बांग्लादेश में इंडियन आर्मी चीफ ने भी ये कहा और फिर उसके लास्ट में बताया कि बांग्लादेश होम मिनिस्टर असदुज्जमान खान ने क्या बोला. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर there might be any option over here there, but we have EDACB as our correct sequence of this question. ठीक है. चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ. Let's move on to the next question. An absence of government truths has meant that areas that look green, such as tea estates and commercial plantations, have been counted as forests. फिर environmentalists stress that it is difficult to believe that India's forest cover has become more dense in the last 2 years simply because this process takes much longer. For this, we need a more rigorous integration of the forest policy with other existing environmental legislation and policy. This in turn will help decentralize information on forests. The point is that there is a need to create mechanisms to calculate our actual forest cover and natural wealth, and this should form the basis for a forest policy. Crucially, the claim of new forests being created is questionable in several consequences forest reports. Now, यहाँ पर हम बात करें किसकी? फॉरेस्ट की, प्लांटेशन की, इंडिया में जो फॉरेस्ट कवर है उसकी. एक्चुअली फॉरेस्ट कवर की बात हो रही है. हाउ इज़ इट एंड वेयर इज़ इट और इसको कैसे काउंट किया जा रहा है. दिस इज़ व्हाट वी आर रेफरिंग टू हियर, राइट. फॉरेस्ट कवर की बात हो रही है. अब देखो हम बात क्या करें ये समझो. एन एब्सेंस ऑफ ग्राउंड ट्रूथ्स हैज़ मेंट, मतलब ग्राउंड ट्रूथ का एब्सेंस है. अब ट्रूथ्स का एब्सेंस है, यू हैव टू मेंशन समथिंग, राइट. आपको उससे पहले कुछ बताना पड़ेगा कि ट्रूथ दिया कहाँ हुआ है. दिया कहाँ हुआ है, जो एब्सेंस बता रहे हो तो एब्सेंस किस चीज़ में है, किस चीज़ में एब्सेंस है, दैट इज नॉट मेंशन. सो यू कैन नॉट प्लेस ऑप्शन नंबर ए एज योर फर्स्ट स्टेटमेंट. व्हाई? बिकॉज एब्सेंस कहाँ है ये चीज़ हमें पता नहीं है. सो ऑप्शन नंबर ए इज एलिमिनेटेड. Then B comes with what? Environmentalists stress that it is difficult to believe that India's forest cover has become more dense in the last 2 years simply because the process takes much longer. कह रहे हैं environmentalists कैसे कहते हैं कि environmentalist stress मतलब emphasize कर रहे हैं इस चीज़ को क्या कि it is difficult, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है बिलीव करना, इसको समझना कि इंडिया के फॉरेस्ट कवर हैज़ बिकम मोर डेंस, मतलब बहुत ज़्यादा वो डेंस हो चुके हैं लास्ट 2 साल में, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत लंबा समय लेता है कुछ काम करने के लिए, राइट. सो ऑप्शन नंबर बी इज़ एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस. मूविंग फर्दर वी हैव सी फॉर दिस इस वजह से. सो दिस तो किसी को पॉइंट आउट कर रहा है, ये हमारा पहला स्टेटमेंट नहीं हो सकता है. किसको पॉइंट आउट कर रहा है? वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, राइट. डी में आते हैं. डी में लिखा है द पॉइंट इज दैट. किस चीज़ के पॉइंट की बात करो भाई? द पॉइंट इज दैट. सो व्हाट, विच पॉइंट आर वी रेफरिंग टू एंड इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट आर वी रेफरिंग दिस पॉइंट. ये पॉइंट किस कॉन्टेक्स्ट में या किस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं ये भी हमें नहीं पता. नाउ कम्स द ई सेंटेंस. इट सेज क्रूशली द क्लेम ऑफ न्यू फॉरेस्ट बीइंग क्रिएटेड इज क्वेश्चनेबल. कह रहे क्रूशली जो क्लेम नए फॉरेस्ट का बीइंग क्रिएटेड इज क्वेश्चनेबल. क्रूशली दैट इज इंपॉर्टेंटली हो सकता है. फिर कह रहे जो न्यू फॉरेस्ट का क्लेम किया जा रहा है, क्रिएट हुए हैं, वो क्वेश्चनेबल है. ठीक है. इन सेवरल कॉन्सिक्यूटिव फॉरेस्ट रिपोर्ट्स. नाउ दिस इज एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस एज वेल. ये भी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो गया. बट वी हैव व्हाट? एनवायरमेंटलिस्ट कब बोलेंगे? तब बोलेंगे, वो स्ट्रेस कब करेंगे, एम्फसाइज कब करेंगे? तब करेंगे जब उसके बारे में कुछ लिख दिया गया हो, रिपोर्ट लिख दी गई हो. तो रिपोर्ट किस में लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ई में लिखी गई है. दैट मीन्स ई वाला स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट तो है, बट दिस कैन नॉट बी द फर्स्ट सेंटेंस. हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा ई स्टेटमेंट, जो बात कर रहा है कि लोग कह रहे हैं, क्रूशली इंपॉर्टेंटली लोग कह रहे हैं कि नए फॉरेस्ट बना दिए गए हैं, लेकिन नए फॉरेस्ट बना तो दो, लेकिन उसका क्रिएशन क्वेश्चनेबल है. क्यों? क्योंकि इतना थोड़ा समय थोड़ी लेता है, इसको बहुत टाइम लग जाता है काम होने में, राइट. इन सेवरल कॉन्सिक्यूटिव फॉरेस्ट पार्ट्स रिपोर्ट्स, मतलब बहुत सारे फॉरेस्ट रिपोर्ट्स में क्या आया है? फॉर दिस द पॉइंट द एनवायरमेंटलिस्ट नो एन एब्सेंस ऑफ ग्राउंड ट्रूथ्स. बिल्कुल, बहुत सारे फॉरेस्ट रिपोर्ट्स में क्या आई है? ऑप्शन नंबर ए, एब्सेंस ऑफ ट्रूथ.
यहाँ जो रिपोर्ट मेंशन्ड है उसी रिपोर्ट को आगे ले जाते हुए क्या कह रहे हैं, एब्सेंस ऑफ ट्रूथ है उसमें. एन एब्सेंस ऑफ ग्राउंड ट्रूथ हैज मेंशन्ड दैट एरियाज दैट लुक ग्रीन सच एज टी एस्टेट्स एंड कमर्शियल प्लांटेशंस हैव बीन काउंटेड एज फॉरेस्ट. कह रहे हैं फॉरेस्ट क्यों बता रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि न्यू फॉरेस्ट है, क्योंकि चाहे वो टी प्लांटेशन हुई हो चाहे कमर्शियल प्लांटेशन हुई हो, इन दोनों को भी उन्होंने फॉरेस्ट में जोड़ लिया है. तो दिस इज नॉट फॉरेस्ट एक्चुअली, ये फॉरेस्ट नहीं होता है, राइट. फिर उसके बाद क्या आएगा, एनवायरमेंटल स्ट्रेस. अच्छा, इन्होंने रिपोर्ट की बात करी, रिपोर्ट में एब्सेंस है, ठीक है. फिर कह रहे क्यों कहा जा रहा है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्यों कहा जा रहा है कि ये क्वेश्चनेबल है, ये इसको क्वेश्चन क्यों किया जा रहा है, क्योंकि एनवायरमेंटलिस्ट स्ट्रेस करते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट एक बात पे बहुत ज़्यादा जोर डाल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बिलीव करना, विश्वास करना कि इंडिया का फॉरेस्ट कवर बिकम मोर डेंस. लास्ट दो सालों में इंडिया बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट से भर चुका है, बहुत सारे फॉरेस्ट आ गए हैं इसमें. इट्स नॉट ईजी टू बिलीव दैट, ये बिलीवेबल नहीं है. क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस काफ़ी लंबा समय लेती है, ठीक है. ये प्रोसेस काफ़ी लंबा समय लेती है. तो ये प्रोसेस कौन सी है, जो भी आपने ई और ए में मेंशन किया है उस प्रोसेस की, दैट मीन्स फॉरेस्ट डेवलपमेंट की, ठीक है. फिर कह रहे हैं द पॉइंट इज दैट देयर इज अ नीड टू क्रिएट मैकेनिज्म्स टू कैलकुलेट आवर एक्चुअल फॉरेस्ट कवर, है ना. अब कह रहे हैं ये प्रोसेस बहुत लंबे समय लेती है, इसको बिलीव नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना है, ऑप्शन नंबर डी में इसका सोल्यूशन दिया है या मेजर दिया गया है कि करेंगे क्या एक्चुअली. Then what we have to do, the point is that there is a need to create mechanisms to calculate our actual forest cover and natural wealth, and this should form the basis for forest policy. और ये basis बनना चाहिए forest policy का. For this और last में लगेगा और इसलिए और इसके लिए, for this, इसी point के लिए बोला जा रहा है for this, है ना. For this we need a more rigorous integration of forest policy. और इस वजह से हमें और ज़्यादा rigorous integration चाहिए forest policy का with other existing environmental legislation and policy. This in turn will help decentralize information on forest. और इसके मदद से एक और चीज़ हो जाएगी, that means decentralization हो जाएगा किसका, information on forest का, ठीक है. तो correct sequence हुआ आपका क्या, E A B D C. और अब हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे. लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. हियर इट इज. देखो ये फुल स्क्रीन पर क्वेश्चन आपका आ गया है, इसको पढ़ो क्या दिया हुआ है. स्क्रिप्चर्स हैव ऑलवेज परसीव द होलिस्टिक वैल्यू प्रिवेडिंग क्रिएशन एंड स्पीक ऑफ दोज टाइज बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड नेचर. फिर कह रहे हैं एंड ऑफ द नीड टू लिव इन हार्मनी विद द एनवायरमेंट, drawing these and taking into account the body-mind complex that constitutes each human being. Then the wise have shown that the most precious gifts for an individual are water, food and good advice. Pointed out Velukudi Sri Krishnan in a discourse. Water and food are for the upkeep of the body and good advice. Subhashtini for the welfare of the Atma. फिर कह रहे हैं good advice helps one to remain healthy in both mind and body. फिर Indian schools of thought have given much thought to explain the nature and function of the human mind. It is seen as an instrument endowed with the functions to think, decide and act. Now here we are talking about what? We are talking about the decision that we take, we are talking about the things that we do, we are talking about the food that we take, we are talking about the water that we drink. So this is all in all related to something that has a spiritual value to it. ठीक है, हर चीज़ का जो भी यहाँ पर यूज़ किया, चाहे पानी हो, चाहे फूड हो, चाहे आत्मा हो, चाहे कोई थॉट हो, इन सभी का रिलेशन किससे बताया गया है, हमारी आत्मा से बताया गया है, राइट. तो देखो सबसे पहला सेंटेंस क्या होगा, अब देखो पहला लिखा हुआ है स्क्रिप्चर्स हैव ऑलवेज, ये हो सकता है ना. स्क्रिप्चर्स हैव ऑलवेज डन व्हाट, परसीव द होलिस्टिक वैल्यू प्रिवेडिंग क्रिएशन एंड स्पीक ऑफ क्लोज टाइज बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड नेचर. कह रहे हैं स्क्रिप्चर्स ने हमेशा परसीव किया है, दैट मीन्स हमें सिखाने की कोशिश करी है या फिर आगे बताने की कोशिश करी है होलिस्टिक वैल्यू, दैट मीन्स क्या उसकी पॉजिटिव वैल्यू है, किस चीज़ की, प्रिवेडिंग क्रिएशन, मतलब क्रिएशन की. और अगर हम क्लोजली बात करें कि क्या रिलेशन है ह्यूमन बींग का और नेचर का, ठीक है. ये पहला सेंटेंस हो सकता है क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ठीक है. बी में देखो क्या हुआ है, एंड से स्टार्ट हो रहा है, सो ऑब्वियसली दिस विल नॉट बी योर फर्स्ट सेंटेंस. फिर सी में देखो क्या लिखा है, द वाइज हैव शोन दैट द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट्स फॉर एन इंडिविजुअल आर वाटर, गुड एंड good advice, food and good advice, pointed out Velukudi Sri Krishnan in a
डिस्कोर्स। तो यहाँ पर उन्होंने पॉइंट आउट तो किया है, लेकिन पहले हम रिलेशन तो बता दें ह्यूमन बींग्स और नेचर के बीच में, तभी तो हम बताएंगे कि नेचर और ह्यूमन बींग में है क्या। वाटर, फूड और गुड एडवाइस, ये ह्यूमन बींग का रिलेशन फॉर्म कर रहा है, राइट, नेचर से। लेकिन वो चीज़ मेंशन किस में है, ए में, तो सी पहले नहीं आ सकता। फिर डी में क्या लिखा है, वाटर एंड फूड आर फॉर द अपकीप ऑफ द बॉडी। देखो अगेन वाटर एंड फूड की बात हो रही है, ये फिर से आपका ऑप्शन नंबर सीक्वेंस में सही नहीं लिखा हुआ है। फिर लिखा है अच्छा ठीक है, वाटर एंड फूड वो भी बात आएगी कब, जब हम वाटर फूड को इंट्रोड्यूस कर देंगे, जो कि लिखा हुआ है सी में। फिर कह रहे हैं इंडियन स्कूल्स ऑफ थॉट हैव गिवन मच थॉट टू एक्सप्लेन। फिर कह रहे हैं इंडियन स्कूल्स ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा थॉट दिया है। तो ये तो एक कंक्लूडिंग सेंटेंस हो गया कि जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे उसके बारे में स्कूल्स ने काफ़ी थॉट दिया है, राइट। तो ये एक कंक्लूडिंग सेंटेंस हो गया। तो ऑब्वियस ही बात है कि स्टार्ट किससे होगा, इंडिपेंडेंट सेंटेंस ए से ही स्टार्ट होने वाला है। ए से स्टार्ट होगा, दैट मीन्स क्या हुआ कि स्क्रिप्चर ने हमेशा परसीव किया है होलिस्टिक वैल्यू, क्या, प्रिवेडिंग क्रिएशन, मतलब क्रिएट जो होता है ह्यूमन बींग उससे, कि उन दोनों का क्या रिलेशन है, नेचर ऑफ और ह्यूमन बींग के क्या टाइट और क्लोज रिलेशन है आपस में, ठीक है। तो ह्यूमन के रिलेशन को बताया गया है यहाँ पर नेचर के साथ, ठीक है, नेचर एंड ह्यूमन, दो चीज़ों के रिलेशन के बारे में बताया गया। फिर स्टार्टिंग विद दिस आगे हम बढ़े, क्या लिखा हुआ है नाउ। फिर उसके बाद हमने लिखा है बी में, देखो बी वाला स्टेटमेंट ही इसके जज्बात आएगा, क्यों, एंड ऑफ द नीड ह्यूमन बींग्स, बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड नेचर, और उसकी नीड किसकी, एंड द नीड टू लिव इन हार्मनी विद द एनवायरमेंट, नेचर और ह्यूमन बींग के बीच में क्या रिलेशन है। और बी वाला स्टेटमेंट कह रहा है कि जब ये लोग आपस में रहेंगे, एक साथ रहेंगे, तो क्या होगा, हार्मनी कैसे बनेगी दोनों के बीच में, ठीक है, विद द एनवायरमेंट, ड्रॉइंग फ्रॉम these and taking into account the body mind complex that constitute each human being। और body mind complex जो हर human being constitute करता है, हर human being के पास होती है, ठीक है। फिर आ रहा है the wise have shown that the most precious gifts, ठीक है। और फिर human being में ही, जो human being की बात हमने B में कही है, उसी human being में एक पार्ट उसका लेके गए, क्या, the wise, that means द वाइस, दैट मीन्स जो बुद्धिमान लोग हैं, हैव शोन, उन्होंने ये चीज़ दिखाई है, क्या, कि मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट जो हमें इंडिविजुअल को मिला है वो क्या है, पानी है, दैट इज़ फूड, खाना है, और इट इज़ व्हाट, उसके अलावा और क्या है, इट इज़ गुड एडवाइस जो हमें हमारे एल्डर्स से भी मिलती रहती है, एंड वी गेट इट फ्रॉम आवर फ्रेंड्स एज वेल, या हमारे साथ के ही लोगों से हमको मिलती रहती है ना। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। नेक्स्ट कह रहे हैं पॉइंटेड आउट वेलिकुडी श्री कृष्णन इन अ डिस्कोर्स। उन्होंने क्या कहा, अब ये किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, दैट इज़ वेलिकुडी श्री कृष्णन इन अ डिस्कोर्स, इनके बारे में कहा और इन्होंने ही इस चीज़ को पॉइंट आउट किया है, ठीक है। फिर उसके बाद वाटर, फूड और गुड एडवाइस को हमने बात कर ली सी में, है ना, फूड, वाटर और गुड एडवाइस की हमने बात कर ली यहाँ पर। तो अब इन्हीं सब में से दो चीज़ों को हमने फर्दर डिस्कस किया है ऑप्शन नंबर डी में, जो फूड और वाटर को ही डिस्कस कर रहा है कि फूड और वाटर किस तरह से हेल्पफुल है। देखो लिखा है वाटर एंड फूड आर फॉर द कीप ऑफ द बॉडी एंड गुड एडवाइस। कह रहे वाटर और फूड बॉडी के कीप अप के लिए, बॉडी को स्टेबल रखने के लिए, बॉडी को सही तरह से चलाने के लिए है, एंड गुड एडवाइस, और गुड एडवाइस दैट इज सुभाषिनी जिसको बोलते हैं, फॉर द वेलफेयर ऑफ द आत्मा, मतलब आत्मा की संतुष्टि के लिए, आत्मा के अच्छे के लिए। गुड एडवाइस हेल्प्स वन टू रिमेन हेल्दी इन बोथ माइंड एंड बॉडी। और अच्छी एडवाइस अगर मिलती है तो हम दिमाग से भी शांत रहते हैं, और अपना जब दिमाग से शांत रहोगे तो बॉडी ऑब्वियसली शांत रहेगी, राइट। एंड लास्ट सेंटेंस वुड बी व्हाट, इंडियन स्कूल्स ने थॉट दिया है इस पे, इंडियन स्कूल्स ऑफ थॉट ने हैव गिवन मच थॉट टू एक्सप्लेन द नेचर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन माइंड। और ह्यूमन माइंड कैसे फंक्शन करता है, इसके थॉट को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। इट इज़ सीन एज एन इंस्ट्रूमेंट एंडाउड विद द फंक्शंस टू थिंक, डिसाइड एंड एक्ट। कह रहे यही इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फूड, वाटर और गुड एडवाइस, यही तीन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे इंसान सोचता है, डिसाइड करता है और फिर उसके बाद एक्ट करता है, ठीक है। तो करेक्ट सीक्वेंस आपका कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, इट्स एज इट इज ABCDE। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके स्टेटमेंट में क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए कि आपको क्या मिल जाए, सीक्वेंस बिल्कुल करेक्ट मिल जाए, तो आप कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ट्राई सॉल्विंग सच क्वेश्चंस, ट्राई सॉल्विंग न्यू पैटर्न्स, ताकि आपको पता चले कि क्या क्या पैटर्न्स हम एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। विद दिस वी एंड अप दिस सेशन। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, द वेरी थिंग दैट यू हैव टू प्रैक्टिस इज योर एडिटोरियल सेक्शन, ताकि आपका ऐसा कोई भी सेशन क्या हो, मिस ना हो। एडिटोरियल सेक्शन पढ़ोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, आपकी रीडिंग स्किल डेवलप हो जाएगी,
ठीक है, देन यू विल डेवलप योर वोकेबलरी. तो सब चीज़ एक साथ डेवलप होती है एंड देन यू विल बी एबल टू एक्सेल, देन यू विल बी एबल टू मास्टर रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स एंड यू कैन से क्लोज टेस्ट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एज वेल, राइट. तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा. विद दिस वी एंड आवर शो. कीप वॉचिंग अस, कीप लविंग अस, बिकॉज वी लव यू, एंड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स.